हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज गेट सीएसई में. इन द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग we were discussing functions. So in my previous video we had discussed about the parts of functions. Functions are certain set of statements which are going to perform a specific task, right? There are three components of a function: function prototyping, function definition and function calling. Now today we are going to discuss the various categories of functions, how we can implement function in four different categories. So first category is function with no return value and no arguments, right? That means as a return value you are providing void, matlab your function is not going to return any value, and as an argument you are not at all providing anything. That means you may provide void or you may not pass anything as an argument. So first category was no return value, that means void, and no argument, that means empty parenthesis or parenthesis with void. Second category is function with arguments passed and no return value. That means no return value means your return type would be void, but you may pass arguments based on your problem statement, right? Third one is function with no arguments but returns a value. That means your function could contains a return type, right? Integer हो सकता है, float हो सकता है, किसी भी type का हो सकता है apart from void. It may be anything, right? But you are not passing any argument. So you may provide void or you may not pass anything to it, right? These two things are similar, right? Fourth category is function with arguments and returns a value. That means you will provide a return type. Apart from void, you can use anything, and you may pass n number of arguments as per the need of your problem, right? So let us move towards the implementation of these four categories. आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अगर फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं तो इन फोर टाइप में से किसी भी टाइप से आप फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. So let us move towards the first category. First category was function with no return value and no argument, right? So here I am using, so in first category I am using a function with no return value and no argument. So in the main function I have prototyped the function sqr, square, right, whose return type is void. That means it will not return any value, right? And let us not pass anything to it, right? So this is function prototype, and in the main function I am calling the function. जैसे ही आप इस function को call करेंगे, the control will be transferred here, right? Function definition यहाँ पे फिर से एक number enter कराया. जैसे ही नंबर एंटर हो रहा है आप मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, क्या कैलकुलेट किया है, नंबर इनटू नंबर. दैट मींस आपने उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, राइट? तो जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होगी, स्क्वायर फंक्शन की जैसे ही कॉलिंग होगी आप यहाँ आ जाओगे. यू विल आस्क फॉर अ नंबर फ्रॉम यूजर. जैसे ही यूजर नंबर एंटर करेगा यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर एंड यू विल डिस्प्ले द आउटपुट, राइट? जैसे ही स्क्वायर का आउटपुट डिस्प्ले होगा, कंट्रोल अगेन ट्रांसफर हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट मिल जाएगा, प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाओगे, राइट? लेट अस चेक द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ दिस कॉलिंग. तो देखिए स्क्वायर फंक्शन की कॉलिंग हुई मेन फंक्शन में. स्क्वायर फंक्शन की कॉलिंग होते से ही उसने पूछा एंटर अ नंबर. सपोज मैंने एंटर किया 25, तो उसने कैलकुलेट करके बता दिया स्क्वायर ऑफ 25 इज 625. तो दिस वाज फर्स्ट कैटेगरी, राइट? सेकंड कैटेगरी इज फंक्शन विद आर्गुमेंट पास्ड बट नो रिटर्न वैल्यू. आर्गुमेंट तो पास करेंगे बट रिटर्न कुछ भी नहीं कराएंगे, राइट? तो सपोज मैंने प्रोटोटाइपिंग में एक वॉइड टाइप का दे दिया, मतलब रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड दे दिया, बट 2 आर्गुमेंट्स पास कराए, राइट? दोनों इंटीजर टाइप के होने वाले हैं, तो आप सिंपल इंट कॉमा इंट भी लिख सकते हैं, राइट? मेन फंक्शन में आपने 2 नंबर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, यूजर को बोला एंटर करे उनकी वैल्यू. जैसे ही यूजर एंटर करेगा आप ऐड फंक्शन की कॉलिंग करोगे उन 2 वैल्यूज के साथ जो वैल्यू यूजर ने एंटर की थी, राइट? तो आपने ए में फर्स्ट वैल्यू ले रखी है, बी में वो सेकंड वैल्यू ले रखी है. जैसे ही इस फंक्शन की कॉलिंग होगी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा लाइन नंबर 13 पे, और क्या होगा, ए की वैल्यू एक्स में पास हो जाएगी, बी की वैल्यू वाई में पास हो जाएगी. ए और बी आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्स और वाई आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट?
तो a की वैल्यू x को मिल गई, b की वैल्यू y को मिल गई। आपने सिंपली क्या किया, x और y को ऐड किया और c में रिजल्ट को स्टोर करा दिया और c को डिस्प्ले करा दिया। क्लियर? जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपसे पहले पूछेगा एंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। आपने a एंड b की वैल्यू एंटर करी। जैसे ये दो वैल्यू आपने पास की है, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया लाइन नंबर 13 पे। a की वैल्यू x को मिली, b की वैल्यू y को मिली, दोनों का सम कैलकुलेट हुआ और आपको लाइन नंबर 17 में आउटपुट डिस्प्ले हो गया। एडिशन इज दिस, राइट? हेडिंग टुवर्ड्स the third category is function with no arguments but returns a value, right? अब आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे बट हम कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेंगे, राइट? तो एज अ रिटर्न टाइप आपको कुछ ना कुछ void के अलावा और कोई डेटा टाइप लेना पड़ेगा, राइट? तो मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, प्रोटोटाइपिंग मेन फंक्शन में कर दी है इस बार, ठीक है? तो इंटीजर टाइप का ले लिया, एरिया नाम से फंक्शन बनाया और देखिए आप उसके पैरामीटर्स कुछ भी पास नहीं किए, राइट? तो ये हो गया आपका थर्ड केस जिसमें फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू वाला हो गया, ठीक है? आपने एक z वेरिएबल ले लिया, एरिया फंक्शन की जो कॉलिंग करने पे आपका आंसर आएगा वो आंसर z में स्टोर होगा और आप इस z को फाइनली डिस्प्ले कराएंगे, राइट? तो समझते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया एरिया फंक्शन का, ठीक है? z वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। z इक्वल टू एरिया फंक्शन की कॉलिंग कर ली। जैसे ही एरिया फंक्शन की कॉलिंग होगी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 पे क्या मिला है आपको, उसने बोला एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपने जैसे ही एल और बी की वैल्यू एंटर कराई, एट द सेम मोमेंट आपने क्या रिटर्न कराया, एल इंटू बी, उन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट होगा, राइट, यहां से वैल्यू रिटर्न होगी। रिटर्न होगी मतलब कि एल और बी का मल्टीप्लीकेशन का जो भी आंसर आया होगा वो आ जाएगा, वो इस एरिया फंक्शन को रिप्लेस कर देगा, राइट? तो सपोज 2 एंड 3 एंटर किया था आपने तो 6 आया, तो एरिया के प्लेस पे आ गया 6, मतलब z के अंदर स्टोर हो चुका है 6 और आपने डिस्प्ले करा दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 6, राइट? सो इन दिस वे दिस प्रोग्राम विल रन, राइट? आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम वुड बी, आपसे पूछा एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, आपने जैसे ही एंटर किया उसने मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट किया और वैल्यू रिटर्न कर दी। वो वैल्यू आपने z वेरिएबल में होल्ड कराई और z को डिस्प्ले करा दिया। सो दिस वाज योर थर्ड केस। नाउ फोर्थ एंड फाइनल केस इज फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। अब दोनों चीजें करेंगे, राइट? तो इन द फोर्थ केस सपोज आई हैव गिवन अ रिटर्न टाइप इंटीजर एंड आई एम अगेन पासिंग एन आर्ग्यूमेंट, राइट, whose value is going to be integer, राइट? क्यूब नाम से एक फंक्शन बना है जिसका रिटर्न टाइप जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और यूजर को एक इंटीजर टाइप का इनपुट भी लेगा, राइट? मेन फंक्शन में आप गए, आपने यूजर को बोला एंटर अ नंबर, यूजर ने जो भी एंटर किया होगा आपने उस नंबर को पास किया क्यूब फंक्शन की कॉलिंग में, राइट? ये क्यूब फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, उसमें आपने यूजर से जो भी नंबर लिया है उसको पास कर दिया। जैसे ही इस फंक्शन की कॉलिंग होगी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया लाइन नंबर 15 पे, a की वैल्यू x में कॉपी हो जाएगी और क्या रिटर्न करेगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स। मतलब सपोज आपने 2 एंटर किया था तो 2 इंटू टू इंटू टू कैलकुलेट करेगा और ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये जो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है इस वैल्यू को ये आंसर ans नाम का वेरिएबल होल्ड करेगा। क्लियर? इसने इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न की है और ans वेरिएबल भी आपका इंटीजर टाइप का है, तो जो वैल्यू क्यूब रिटर्न करेगा वो वैल्यू आंसर होल्ड करेगा, राइट? और फिर आप क्या करोगे, इस क्यूब फंक्शन को मतलब ये आंसर को डिस्प्ले करा दोगे, राइट? तो जब आप इस कोड को रन करोगे तो so it is asking for a number, suppose I have entered 8, so the cube of number is 512, right? So this was all about the 4 different categories of functions, right? आप चार में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है, इजी लगता है, आप चार में से किसी भी तरीके से अपने फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। If you really like this content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.